हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ कैम्ब्रिज इंग्लिश ग्रामर इन यूज बाय रेमंड मर्फी 4th एडिशन। ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 52 52 ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, क्वेश्चन टैग। ਆਪਾਂ ਨੇ क्वेश्चन टैग्स ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ सेंटेंस ਦੇ एंड ਤੇ, और ਆਪਾਂ किस तरह लगाने ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग है जेकर ध्यान नाल समझोगे। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ 52.1 है ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, पुट अ क्वेश्चन टैग ऑन द एंड ऑफ दीज सेंटेंसेस। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ सेंटेंस ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ सेंटेंसेस ਦੇ एंड ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ क्वेश्चन टैग ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ क्वेश्चन मार्क ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੂਰਲਾ सेंटेंस ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੋਮਾ ਲਗਾਇਆ, ਕੋਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸੇ सेंटेंस ਨੂੰ इंटैरोगेटिव बनाना है क्वेश्चन टैग लगा के। देखो ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ इंटैरोगेटिव सेंटेंस ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ इंटैरोगेटिव ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ इंटैरोगेटिव सेंटेंस ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਰੇ ਨੇ। इंटैरोगेटिव सेंटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ, ਫਿਰ ਮੇਨ ਵਰਬ, ਫਿਰ ਆਬਜੈਕਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ इंटैरोगेटिव सेंटेंस ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ। बट कई सेंटेंस ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਫਰਮੇਟਿਵ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕੀ ਰਾਮ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੀ ਰਾਮ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ਰਾਮ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ सेंटेंस। बट एक इंटैरोगेटिव आप इस तरह पुछते होंगे, आप किसी को मतलब पहले दसते होंगे और बाद दे विच आप क्वेश्चन टैग पुट कर देंगे। जिस तरह कि आप किसी को कहिए राम बहुत ज़्यादा इंटैलीजेंट है कि नहीं, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਗ। ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਗ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਫਰਮੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਗ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ जिस सेंटेंस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਟ ਵੋਂਟ ਬੀ ਲੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂ ਆਰ ਟਾਇਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ सेंटेंस ਪੜਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇਖਣਾ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ। ਔਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਗ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ, ਉਸੇ सेंटेंस ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਫਿਰ ਸਬਜੈਕਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੈਂਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੋਣਗੇ ਡੂ ਜਾਂ ਡਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੋਰਮਲੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਗ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਗ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰ ਯੂ, हैव यू, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ हैव नॉट यू, हैवंट यू, ਜਾਂ ਫਿਰ aren't you, ਜਾਂ ਫਿਰ don't you, है ना। इस तरह ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਉਦੋਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਫਟਰ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਮੂਰਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਟੈਗ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਊ ਉਹ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। बट जेकर एंड वी यूज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, ਅਸੀਂ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਉਣੇ ਆ आफ्टर अ नेगेटिव सेंटेंस। जेकर मूरला सेंटेंस ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ नेगेटिव ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ਲਗਾਵਾਂਗੇ, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट। जेकर इधर पॉजिटिव है फिर ਆਪਾਂ हेल्पिंग वर्ब ਦੇ ਨਾਲ नॉट, फिर ਜਿਹੜਾ इधर सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट लगा देंगे। आई होप के समझ गए। देखो एग्जाम्पल दी हुई है, देखो यू आर ब्रेव आप किस कहने, पहला तो देखो अफर्मेटिव हो गया, आप दस रहे हैं यू आर ब्रेव, उस तो बाद आर नॉट यू,
क्योंकि देखो यू आर ब्रेव हैल्पिंग वर्ब आर है, सब्जैक्ट यू है, तो अगे आप हैल्पिंग वर्ब जो क्वेश्चन टैग लगावांगे उस तो बाद सब्जैक्ट, बट यह की है, ये पॉजिटिव है तो करके आर नॉट यू। बट दूसरा यू आर नॉट ब्रेव आर यू, तो उत्थे आर यू नैगेटिव है तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, जेकर पॉजिटिव है तो नैगेटिव क्वेश्चन टैग। ये सारे इस तरह लगाते जाने ने, बिल्कुल आसान है। बस तुसीं ने सेंटेंस पढ़ना है, उस दे विच जो अपना हैल्पिंग वर्ब है उस अगे पहला यूज करना है, फिर जिहड़ा सब्जैक्ट है वो यूज करना है। बट तीन चीज़ां होर याद रखनियां ने मोस्ट इंपॉर्टेंट। जेकर अपना इधर जिहड़े सेंटेंस ने, जेकर सेंटेंस लेट्स तो स्टार्ट होंदा है तो जो आप क्वेश्चन टैग लगावांगे हमेशा तो शैल वी लगूगा, बस याद रखियो शैल वी। जेकर डोंट तो स्टार्ट होंदा है तो विल यू लगूगा। जेकर आई एम तो स्टार्ट होंदा है तो आर नॉट आई, आरंट आई। इन्हां दा रट्टा ही मार लो, तिन्ने ये तो फिक्स ने। हुण देखो आप बनाउने आ, देखो पहले दे विच देखो की है, पहले दे विच कह रहा है कहने केट वॉन्ट बी लेट, जिहड़ी केट है वो लेट नहीं होगी। वॉन्ट का मतलब विल नॉट। हुण आपां पिछे क्वेश्चन टैग लगाउणा है। पहली गल तां देखो इस दे विच जिहड़ा हैल्पिंग वर्ब है वो की है, विल नॉट, मतलब कि विल है, तो सब तो पहले आपां विल यूज करांगे, विल। उस तो बाद केट, हुण केट मतलब सब्जैक्ट है तो इसकी जगह पर आप ओबवियस है जो एक बार आप किसी का नाम यूज कर लें उस तो बाद आप प्रोनाउन यूज करते हैं। हुण केट नूं आप एक लड़की मानते हैं तो आप शी है जिहड़ा वो यूज करांगे। और दूसरा आप और विल शी मतलब कि विल शी करांगे, बट इत्थे विल नॉट शी भी आ सकता सी जेकर ये पॉजिटिव हुंदा, क्योंकि यह सेंटेंस पहला नैगेटिव है, वॉन्ट है, तां करके आप पॉजिटिव विल शी, तो सिर्फ इतने विल शी करांगे। की मतलब हो जिहड़ी केट वॉन्ट बी लेट, जिहड़ी केट है वो लेट नहीं होएगी, विल शी की होगी कहंदा, बाद आप पूछ रहे हैं तो अगला बंदा अपन कहना नो शी इज नेवर लेट, ना कहना कदे वो लेट नहीं हुई। अगे देखो सैकेंड यू आर टायर्ड, कहना तुसीं थके हुए हो कि नहीं, हुण आपां कहांगे एंड ते। देखो यू आर हैल्पिंग वर्ब इज एम आर है और यू अपना सब्जैक्ट है तो सब्जैक्ट नाल आर ए लगूगा, यू नाल भी। इत्थे आपां लावांगे आर, बट देखो ये पॉजिटिव है ना, यू आर टायर्ड तो आप नेगेटिव करांगे आरंट, मतलब कि आर नॉट सब्जैक्ट यू तो क्वेश्चन मार्क हो गया। कि तुम थके हुए हो तो कहना यस अ लिटिल, हाँ कहना थोड़ा जिहा थके हुए। आई होप के समझ आउण लग गई किस तरह बनाने ने। देखो अगला यू ट्रैवल अ लॉट, तुसीं कहने बहुत ज्यादा यात्रा करते हो। हुण ये देखो सेंटेंस किहड़े टेंस दा है, यू ट्रैवल अ लॉट, सब्जैक्ट है, वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म है, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट दे विच आपां जिहड़ा हैल्पिंग वर्ब है जो क्वेश्चन मार्क दे जो आप इंटैरोगेटिव बनाने तो की लगता डू ते डज। हुण इत्थे सब्जैक्ट है यू, तो यू नाल की लगू डू, तो आपां डू यू, बट उस तो पहला देखो यू ट्रैवल अ लॉट, ये पॉजिटिव है नैगेटिव नहीं हैगा, तो आपां उत्थे नैगेटिव क्वेश्चन मार्क करांगे तो आपां कहांगे डोंट यू, डोंट यू मतलब ये पूछ रहा है यू ट्रैवल अ लॉट, तुसीं बहुत ज्यादा यात्रा करते हो, डोंट यू कि नहीं करते, तो अगे यस आई लव ट्रैवलिंग, कहना मैनू ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद है। चौथा यू वर नॉट लिसनिंग, कहना तुसीं नहीं सुन रहे सी, वॉज वर है अपने लवे जिहड़ा अपना हैल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट है यू, यू नाल लगू वर, तो इत्थे आएगा वर यू, वर यू, क्योंकि इत्थे नेगेटिव है तां करके वर यू। जेकर ये हुंदा यू वर लिसनिंग तो आपां कहंदे वरंट यू, मतलब वर दे नाल नॉट लगा के यू। और अगे की कह रहा है यस कहना आई वॉज, कहना मैं सुन रहा सीगा। पंजवां सारा डजंट नो एन, जिहड़ी सारा है वह एन नू नहीं जानती। देखो डू ते डज आ गया अपना हैल्पिंग वर्ब। हुण सारा एक लड़की है मतलब कि शी, तो शी दे नाल की लगेगा, शी दे नाल लगेगा डज, और ये नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव बनावांगे डज शी, डज शी, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू डज पहला तो ही लगे हुआ है, तो डज शी, तो अगे कहना नो अपना अगे है नो दे हैव नेवर मेट, इत्थे दे आएगा, कहने नहीं जानते एक दूसरे नू, नो दे हैव नेवर मेट भी नहीं जानते उसनू। छेवां जैक इज ऑन हॉलीडे, जिहड़ा जैक है वह छुट्टियां ते है, ऑन हॉलीडे, जैक इत्थे अपॉस्ट्रोफी एस दा मतलब इज, जैक इज ऑन हॉलीडे मतलब कि इज एम आर है, तो जैक जैक दे नाल की लगे एक नाम है मतलब कि आप प्रोनाउन यूज करांगे ही, तो ही दे नाल इज लगू, तो इत्थे हैगा इज, बट ये पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव नहीं हैगा, तो आप करांगे इजंट ही, कि जैक हॉलीडे ते है, इजंट ही कि नहीं, तो कहना यस
ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 7ਵਾਂ ਕੇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਜ਼ ਹੈ। ਕੇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਟੂ ਚਾਈਨਾ ਬਿਫੋਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਟ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਤਾਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈਜ਼ ਜਾਂ ਹੈਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਟ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੂ ਹੈਜ਼, ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਜ਼ਨਟ ਸ਼ੀ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚਾਈਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ 2 or 3 times, 2-3 ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸਪੀਕ ਜਰਮਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਮਨ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਕਾਂਟ ਯੂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਸਪੀਕ ਜਰਮਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਤਾ ਕਾਂਟ ਯੂ। 9ਵਾਂ ਦੇ ਵਾਂਟ, ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਂਟ ਯੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ ਬਟ ਨਾਟ ਫਲੂਐਂਟਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। 9ਵਾਂ ਦੇ ਵਾਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਲ ਨਾਟ ਮਾਈਂਡ ਇਫ ਆਈ ਟੇਕ ਅ ਫੋਟੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਵਿਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਾਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣੂਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵਿਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਂਟ ਦੇ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਵਿਲ ਦੇ। नो ऑफ कोर्स दे वॉन्ट, कहने नहीं वो माइंड नहीं करते जेकर आप फोटो लेने। 10वां देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हेयर, कहना इत्थे बहुत सारे लोग ने। देखो आर इज एम आर, ये देयर अपना सब्जैक्ट है। हुण देयर दे नाल की लगू, देयर दे नाल आपां यूज करते हैं इज, तो उरे पहला आपां इज यूज करांगे फिर देयर, बट ये पॉजिटिव है तो आपां करांगे नेगेटिव इजंट देयर। इतने बहुत सारे लोग ने ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ ਮੋਰ ਦੈਨ ਆਈ ਐਕਸਪੈਕਟਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਗੇ 11ਵਾਂ ਲੈਟਸ ਗੋ ਆਊਟ ਟੂ ਨਾਈਟ, ਦੇਖੋ ਲੈਟਸ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਲੈਟਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਲ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਲੈਟਸ ਵਾਲਾ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ੈਲ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਟਸ ਗੋ ਆਊਟ ਟੂ ਨਾਈਟ, ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ ਅੱਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਗ੍ਰੇਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। 12ਵਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨॉट ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨॉट ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਔਰ ਅੱਗੇ ਦਿਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਸ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗੂ ਇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਜ਼ਨਟ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇਜ਼ਨਟ ਦਿਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ 13ਵਾਂ आई एम टू इंपेशेंट, इंपेशेंट ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब शांत, ਤਾਂ देखो आई एम तो स्टार्ट हो रहा है तब आरंट आई, ਤਾਂ ਉਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ आर नॉट आई, आरंट आई कहना यस यू आर समटाइम्स, हाँ कई बार कहना तुसी ਹੁੰਦੇ ਹੋ शांत। 14वां यू वुड नॉट टेल एनीवन, कहना तुसी किसी ਨੂੰ ਵੀ नहीं दसोगे। देखो वुड है, वुड नॉट मतलब कि वुड और अपना सब्जेक्ट की है यू, वुड यू, क्योंकि इत्थे नेगेटिव है तो वुड यू ही आएगा, है ना। तो अगे कहना नो ऑफ कोर्स नॉट, कहना नहीं मैं किसी को नहीं दसांगा। अगे 15वां 16वां 17वां तुसीं खुद करना है, बिल्कुल आसान है। 18वां मैं इसलिए इत्थे कर रहा क्योंकि डोंट तो स्टार्ट हुंदा है, वो आपां दसना तुहानूं। देखो डोंट ड्रॉप दैट वेस, बेस हुंदा है जिहदे विच आपां गमला फुੱਲ वगैरह रखदे हां, कहना इसनूं ना मतलब ड्रॉप ना करियो, छड्डिओ ना। देखो डोंट तो स्टार्ट हो रहा तो आपां विल यू, तो आप करांगे विल यू, मतलब कि कह रहा है डोंट ड्रॉप दैट वेस, विल यू भी इनू ड्रॉप ना करो जो बेस है गम लेगा, विल यू करोगे कहना, वो कहना डोंट वरी आई वॉन्ट, मतलब कि आई विल नॉट, कहना घबराओ ना मैं इसनू ड्रॉप नहीं करूँगा, हथ चो नहीं छड्डूंगा। सो देखो बिल्कुल आसान है, सिर्फ 2-3 गल्लां याद रखनियां ने। सेंटेंस पढ़ना है, ये सेंटेंस जेड़े टेंस का है उसे टेंस का इधर पहला हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर जेड़ा इत्थे सब्जेक्ट है वो लिखना है। और दूसरी गल बस तुसीं ने ये याद रखनी है, जेकर यह नैगेटिव है तो पॉजिटिव बना देना है, जेकर यह पॉजिटिव है तो इसनूं नैगेटिव कर देना, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के नाल नॉट का यूज है जिहड़ा वो कर लेना है। और आ तिन्ने ने जिहड़े ये स्ट्रक्चर तुसीं ने याद ही रखने ने। जेकर इन्हां चों आ जाए लेट्स डोंट आई एम तो इन्हां चों फिक्स है शैल वी, विल यू या फिर आरंट आई। सो देखो बिल्कुल आसान है, इसनूं ध्यान दे नाल करना है। और जिहड़े आपां छड्डे ने मतलब कि 15वां 16वां 17वां वो भी तुसीं ने खुद करके देखने ने। सो इसी अपनी इस यूनिट का अपना पार्ट फस्ट।
एंड अगे देखो हुण अपनी इस यूनिट का आपां सैकेंड पार्ट करते हैं, बिल्कुल सेम है जिस तरह आपां पहला पार्ट करिया उस तरह यह सैकेंड पार्ट है। बस फर्क सिर्फ इन्ना है कि इस सैकेंड पार्ट दे विच उस दे विच जिहड़ा फस्ट पार्ट सी उस दे विच आपां सिर्फ जिहड़ा क्वेश्चनिंग टैग सीगा आपां ओह लगाया सीगा, और जिहड़ा मूरला सेंटेंस सी अफर्मेटिव वो बनया होया सी पहलां तो। इस दे विच आपां ने मूरला सेंटेंस भी जिहड़ा अफर्मेटिव बनूगा वो भी आपां ने खुद बनाउणा है, और क्वेश्चन टैग है जिहड़ा अगे वो भी आपां ने वो तां लाउणा ही लाउणा है। हुण जिहड़ा मूरला भी आपां बनावांगे वो बिल्कुल सिंपल है, इन्हां ने आपां नूं ब्रैकेट दे विच वर्ब्स वगैरह दित्ती होवेगी, सिचुएशन भी दित्ती होवेगी, आराम दे नाल आपां उस नूं बना लांगे, कोई भी आपां नूं दिक्कत है जिहड़ी वो नहीं आवेगी। देखो जदों बनावांगे, देखो फस्ट देखो कहना यू लुक आउट ऑफ द विंडो, तुसी ने विंडो विच दी मतलब खिड़की विच दी बाहर देखिया। द स्काई इज ब्लू एंड द सन इज शाइनिंग, स्काई ब्लू सी ते जिहड़ा सन है वो शाइनिंग चमक रहा सी। वट डू यू से टू योर फ्रेंड। अच्छा इस तो पहला इसनूं करन तो पहला कि उपरली सिचुएशन है वो भी आपां पढ़ लीए। इन्होंने आपां नूं कहा की है, कहना रीड द सिचुएशन, हर एक सिचुएशन है जिहड़ी उसनूं पढ़ो है ना, एंड राइट अ सेंटेंस विद अ क्वेश्चन टैग, अते क्वेश्चन टैग दे नाल जिहड़ा सेंटेंस है तुसीं ने बनाउणा है। इन ईच सिचुएशन, हर एक सिचुएशन दे विच यू आर आस्किंग योर फ्रेंड टू एग्री विद यू, तुसी हर एक सिचुएशन दे विच अपने दोस्त नूं मतलब अपने नाल एग्री करन दी कोशिश कर रहे हो, मतलब उस हिसाब नाल ही अपने सेंटेंस बनाउणा है। देखो हुण देखो तुसी कहना विंडो विच दी देख रहे हो ते जिहड़ा मतलब अपना सूरज है चमक रहा है ना, ब्लू है जिहड़ा अपना आसमान हैगा। वट डू यू से टू योर फ्रेंड, हुण तुसी अपने दोस्त नूं की कहोगे। आपां देखो ब्रैकेट दे विच इन्हां ने दित्ता है ब्यूटीफुल डे, ब्यूटीफुल डे तो यदा मतलब आपां की कहांगे, आसमान नीला है, सूरज चमक रहा है, तो ब्यूटीफुल डे कहने का मतलब कि आपां उसनूं कहांगे कि जिहड़ा मतलब दिन है वो बहुत ज़्यादा वधिया है, ब्यूटीफुल डे। इट्स अ ये आपां नूं इन्हां ने बना के भी दित्ता है, इट्स अ जिहड़ा इन्हां ने पहलां तो लिखिया होया सी, जिस तरह इत्थे आपां नूं स्टार्ट ये करके देणगे उस तो अगे आपां ने बनाउणा है। तो देखो ब्यूटीफुल डे है मतलब तो इट्स अ ब्यूटीफुल डे, बिल्कुल सिंपल है, इट इज अ ब्यूटीफुल डे। हुण ये इट इज अ ब्यूटीफुल डे है तो इज एम आर अपना हेल्पिंग वर्ब हो गया, इट हो गया अपना सब्जैक्ट। तो आपां पहला इज एम आर का यूज करांगे उस दे विचों, फिर इट अपना सब्जैक्ट है इट दा, इट दे नाल लगूगा इज, तो आपां इत्थे लिखांगे इज उस तो बाद इट, बट ये अपना है पॉजिटिव, इट्स अ ब्यूटीफुल डे, पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं है, तां करके आपां इत्थे क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनावांगे, इजंट इट भी हाँ कि भी बहुत सुंदर दिन है कि नहीं। तो देखो सैकेंड हुण आपां बनाउणे आ ध्यान दे नाल, यू आर विद अ फ्रेंड आउटसाइड अ रेस्टोरेंट, तुसी अपने दोस्त दे नाल रेस्टोरेंट दे विचों अपने फ्रेंड दे नाल, यू आर लुकिंग एट द प्राइसेस, तुसी प्राइसेस ने जिहड़े उन्हां दे वल देख रहे हो, कीमतां जिहड़ियां मतलब उस होटल दियां, विच आर वेरी हाई, जिहड़ियां कि बहुत ज़्यादा हाई सीगियां, मतलब बहुत महंगा खाना सीगा। वट डू यू से, तो फिर तुसी की कहोगे, आपां नूं इन्हां ने कहा एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव हुंदा महंगा, हुण कीमतां बहुत ज़्यादा महंगियां सीगियां खाने दियां, हुण आपां नूं भी इन्हां ने दित्ता है महंगा एक्सपेंसिव, इट तो स्टार्ट करना है, तो इहदा मतलब आपां इह कहांगे कि बहुत ज़्यादा महंगा है ना, बहुत ज़्यादा महंगा है मतलब कि इट इज एक्सपेंसिव, इट इज एक्सपेंसिव, या फिर तुम ये भी कह सकते हो इट इज वेरी एक्सपेंसिव। उस तो बाद कोमा ला के आप क्वेश्चन टैग लगावांगे। देखो इज एम आर है तो सेम वही चीज इज एम आर लावांगे, फिर इट है अपना सब्जेक्ट, क्योंकि यह पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव बनावांगे इजेंट, इजेंट इट क्वेश्चन टैग। देखो ये अपना क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल आसान है। देखो थर्ड दे विच की कह रहा है, यू एंड अ कलीग, कलीग हुंदा साथी, कहना तुसी अते एक साथी थोड़ा हैव जस्ट फिनिश्ड अ ट्रेनिंग कोर्स, तुसी ने हुणे हुणे अपना ट्रेनिंग कोर्स है जिहड़ा वो पूरा कीता है, ट्रेनिंग कोर्स पूरा हो गया। यू रियली इंजॉयड इट, तुसी ने इसनूं बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, मतलब इस जिहड़ा अपना कोर्स होया। वट डू यू से टू योर कलीग, हुण तुसी अपने कुलीग नूं की कहोगे, आपां कहांगे ग्रेट, कहण दा मतलब कि अपना जिहड़ा कोर्स पूरा हो गया, आपां अपने कुलीग नूं इह कहांगे कि जिहड़ा अपना कोर्स सी द कोर्स वो बहुत ज़्यादा वधिया सी, ग्रेट सी, क्योंकि पास्ट की गल है सी, क्योंकि अपना जिहड़ा कोर्स है वो हो चुकिया पूरा, तां करके आपां कहांगे द कोर्स वॉज ग्रेट, वॉज ग्रेट ही कहांगे ना, क्योंकि वॉज ग्रेट सीगा मतलब हुण तां पूरा हो चुकिया, तां करके आपां पास्ट दे विच द कोर्स वॉज ग्रेट। हुण आपां क्वेश्चन टैग लगावांगे द कोर्स वॉज,
देखो was है was या were ਹੁਣ the course ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ pronoun ਆਪਾਂ it यूज कर सकते हैं ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ was ਜਾਂ were ਚੋਂ it ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ was ਬਟ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ wasn't it ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ wasn't it ਕਿ ਨਹੀਂ। ਚੌਥਾ your friend's hair is much shorter than when you last met ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਨੇ then when you last met ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਸੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। what do you say to him ਜਾਂ ਫਿਰ her ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ have your hair cut ਯੂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਯੂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਕਰਵਾ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਵ ਯੋਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਵ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਯੋਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯੂ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਟਵਾ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਟਵਾ ਲੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਟਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹੈ ਇਹ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਵ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ ਹੈਡ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਯੂ ਹੈਡ ਯੋਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਯੋਰ हेयर कट कोमा हुण पिछे क्वेश्चन टैग लाउणा है तां हुण देखो ये टेंस है जिहड़ा ये किहड़ा है ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक ही आपां लाउणे ने क्वेश्चन टैग इस तरह नहीं हैगा कि आपां हैड है क्योंकि ये मेन वर्ब है इत्थे ये सैकेंड फॉर्म है इत्थे हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं हैगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट का जो आप इंटैरोगेटिव बनाने तो डिड है जी अपनी हेल्पिंग वर्ब है जी लगती है हुण डिड आप अगे लावांगे बट ये पॉजिटिव है तो डिडंट और अपना सब्जेक्ट है यू डिडंट यू क्वेश्चन टैग देखो यू हैड योर हेयर कट भी तुसी अपने बाल कटवा ले डिडंट यू कि नहीं। पंजवां यू एंड अ फ्रेंड आर लिसनिंग टू अ वुमन सिंगिंग तुसी एक औरत नूं गाउंदे होए सुन रहे हो तुसी ते तुहाडा दोस्त यू लाइक हर वॉइस वेरी मच तुसी उस दी जिहड़ी आवाज़ है उसनूं बहुत ज़्यादा लाइक करते हो मतलब तुहानूं बहुत वधिया लगी उसकी आवाज़ वट डू यू से टू योर फ्रेंड तो तुसी अपने दोस्त नूं की कहोगे तो आपां नूं इन्हां ने दित्ता है अ गुड वॉइस मतलब कि आपां कहांगे शी तो आपां स्टार्ट करना है तो आपां कहांगे कि उसकी आवाज़ बहुत सोहनी है तो आपां कहांगे शी हैज़ अ गुड वॉइस शी हैज़ अ गुड वॉइस मतलब किसी चीज़ ते अधिकार होना तो आप उत्थे हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं जिस तरह कि आप कहना हो मेरे कोल मार्कर है आप कहेंगे आई हैव मार्कर उस दे कोल एक मार्कर है तो ही हो गया तो ही दे नाल हैज़ ही हैज़ अ मार्कर जे आप कहिए उसकी आवाज़ बहुत सोहनी है ही हैज़ अ गुड वॉइस तो करके इत्थे शी हैज़ अ गुड वॉइस भी उसकी आवाज़ बहुत सोहनी है हुण आप क्वेश्चन टैग लावांगे तो इत्थे हैज़ है हैल्पिंग वर्ब तो हैज़ अगे लगावांगे क्योंकि शी अपना सब्जेक्ट है शी नाल हैज़ ही लगूगा तो हैज़ क्योंकि यह पॉजिटिव है तो नैगेटिव लावांगे हैज़ंट शी हैज़ अ गुड वॉइस हैज़ंट शी के नहीं है ना। तो छेवां यू आर ट्राइंग ऑन अ जैकेट मतलब तुसी जैकेट पाउण दी ट्राई कर रहे हो इन अ शॉप दुकान दे विच तुसी जैकेट ट्राई कर रहे हो दुकान दे विच यू लुक इन द मिरर तुसी ने उहदे विच तुसी शीशे दे विच देखदे हो एंड यू डोंट लाइक वट यू सी अते जो तुसी ने देखा तुहानूं मतलब पसंद हो नहीं आया वट डू यू से टू योर फ्रेंड तो तुसी अपने दोस्त नूं की कहोगे मतलब कि इन्हां ने आपां नूं दित्ता नॉट लुक वेरी गुड हुण आपां उसनूं ये कहांगे कि ये जैकेट वधिया दिखाई नहीं दिंदी है ना तो वधिया दिखाई नहीं दिंदी है मतलब कि पास्ट इंडेफिनेट और नैगेटिव है पास्ट इंडेफिनेट का जो आपां नैगेटिव बनाउने पहला सब्जेक्ट हुंदा है फिर डू या डज दे नाल नॉट हुंदा है तो इट दिता है तो इट दे नाल डज नॉट इट डजंट उस तो बाद वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ही हो लुक इट डजंट लुक उस तो वेरी गुड इट डजंट लुक वेरी गुड ये वधिया दिखाई नहीं दिंदी कोमा क्वेश्चन टैग लगावांगे पास्ट अपना प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो जिहड़ा हेल्पिंग वर्ब है डू ते डज हुंदा है तो अगे डू ते डज आऊगा और इट दे नाल आऊगा डू
और इत्थे लावांगे आपां डू इट, डू इट मतलब कि देखो इट दे नाल डजंट आ गया तो क्योंकि ये नैगेटिव है तां करके उत्थे आपां पॉजिटिव बनाउणा है, तां करके आपां डू इट है ना, तां करके आ गया इट डजंट लुक, सॉरी मिस्टेक होगी बाय मिस्टेक, क्योंकि इट दे नाल डज हुंदा है, जेकर तुहानूं पता होवे डज हुंदा है आपां मतलब आई वी यू दे प्लूरल दे नाल आपां डू दा यूज करदे आ, सिंगुलर दे नाल आपां डज दा यूज करदे आ। सो माफी चाहुंदा इस चीज़ दे लई, ध्यान रखना नोट करना है। तो यह आएगा इट डजंट लुक वेरी गुड, डज इट आएगा क्योंकि नेगेटिव है तो आप पॉजिटिव डज इट। लास्ट देखो 7वां कहना यू एंड अ फ्रेंड आर वॉकिंग ओवर अ स्मॉल वुडन ब्रिज, तुसीं ते तुहाडा दोस्त एक छोटे ਜਿਹੇ स्मॉल वुडन ब्रिज ਲੱਕੜ ਦੇ बने हुए ब्रिज के उपर मतलब वॉक कर रहे हो, घूम रहे हो। द ब्रिज इज वेरी ओल्ड, बहुत पुराना यह ब्रिज हैगा, एंड सम पार्ट्स आर ब्रोकन, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰੋਕਨ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਸੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਪਾਰਟ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਸੇਫ, मतलब कि आप कहांगे कि यह ब्रिज है जिहड़ा दिस ब्रिज तो स्टार्ट करना है कि यह ब्रिज ज़्यादा सेफ नहीं है, ज़्यादा सेफ नहीं है, मतलब कि दिस ब्रिज इज नॉट वेरी सेफ। देखो कोई फंडा नहीं, दिस ब्रिज इज नॉट वेरी सेफ। क्वेश्चन टैग लगावांगे, इज एम आर है, इज एम आर है तो द ब्रिज का आप प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, इट ही यूज होएगा द ब्रिज की जगह पे, तो आप इट दे नाल इज आएगा तो आप इज लगावांगे फिर इट, क्योंकि यह नैगेटिव है पहला तो आप पॉजिटिव ही बनावांगे इज इट क्वेश्चन टैग। देखो सो देखो जिस तरह तुहानूं समझाया मैनू नहीं लगता कि इस तो बाद कोई क्वेश्चन है जिहड़ा तुहाडे दिमाग दे विच बाकी बचना चाहिए। आई होप कि जेकर होर कोई सेंटेंस भी आउंदा इस तो इलावा तुहानूं एग्जाम दे विच इस टाइप का तां तुसीं ओह आसानी दे नाल मतलब उसनूं बनाउण दे योग हैगे हो। सो जेकर फिर भी कुछ कमी रहिंदी हुंदी है तो एक बार वीडियो नूं थोड़ा बैक करके दोबारा सुन लिया करो, सारा कुछ तुहानूं समझ जिहड़ा आउणा शुरू हो जाएगा। सो ये सी अपनी इस यूनिट का अपना पार्ट सैकेंड। एंड हुण अगे देखो अपनी इस यूनिट का लास्ट पार्ट है जिहड़ा ओह आपां करांगे थर्ड। आसान है बिल्कुल, बस थोड़ा जा समझण दी गल है। इस नूं करन तो पहला एक चीज़ तुहानूं होर पता होनी चाहिए है, मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि कुड है जिहड़ा कुड कैन दा पास्ट भी हुंदा आपां नूं पता है, बट कुड दा मतलब टेक हैल्प, मतलब जेकर आपां किस तो मदद मंगनी होवे मतलब उदों भी आपां कुड दा यूज़ कर सकते हैं, जां फिर किसी नूं आपां रिक्वेस्ट करनी होवे उदों भी आपां कुड दा यूज़ कर सकते हैं। कुड दे मतलब कि यूज़ ने जिहड़े वुड हो गया, कुड हो गया, मल्टीपल यूज़ ने इन्हां दे। सो देखो इस दे विच की करना आपां ने, इन दीज सिचुएशन इन्हां सिचुएशन दे विच यू आर आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन, तुसी मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन है जिहड़ी लैना चाहुंदे हो। आस्किंग पीपल टू डू थिंग्स मतलब लोकां नूं कुछ करन दे लई कहना आपां ने। देखो करना की है, जिस तरह पहले दे विच की है, यू नीड अ पेन, तुहानूं एक पेन की जरूरत है ना। परहेप्स जेन हैज़ गॉट वन, शायद जेन कोल एक पेन हैगा, आस्क हर, उस तो आपां ने पेन है जिहड़ा हुण मंगना है। हुण देखो किस तरह मंगया, ये पहला जिहड़ा बनाया होया है, जेन नूं कह रहा है जेन यू हैवंट गॉट अ पेन, उस तो बाद कोमा हैव यू, मतलब कि जदों आपां ने हुण किसे तो कोई चीज़ मंगनी है ना, जां फिर किसे तो कोई इन्फॉर्मेशन लैनी है, तुसीं जिहड़ा पहला सेंटेंस है वो नैगेटिव ही बनाउणा है और दूसरा बनाउणा है पॉजिटिव। क्योंकि जदों आपां किस तो पेन मंगदे हां, मान लो आपां किस तो पेन मंगना है, तुसीं क्लास दे विच भी आपां किस तो पेन मंगदे हां, आपां जदों मंगदे हां ना आपां नैगेटिव सेंटेंस वे दे विच आपां मंगदे हां, आपां ये कहांगे हमेशा तुसीं देखिओ जदों आपां किस तो पेन मंगना होवे, यार तेरे कोल पेन नहीं हैगा, पेन नहीं हैगा, उस तो बाद फिर हैगा, तो उस तो बाद मतलब फिर पॉजिटिव हो गया। जेड़ा तो क्वेश्चन टैग लावांगे पॉजिटिव होगा और जेड़ा अगला होगा मूला वो नैगेटिव दे विच होगा, है ना। मतलब कि कोई भी चीज़ है जिस तरह देखो इस दे विच है, यार तेरे कोल पेन नहीं हैगा मतलब कि पहला नैगेटिव उस तो बाद पॉजिटिव, तां करके यू हैवंट गॉट अ पेन, हैव यू, हैवंट गॉट मतलब कि होना, पेन होना, तां करके हैव वर्ब की फॉर्म लग गई, उस बाद गॉट जिहड़ी वर्ब इन्हां ने यूज करी है वही वर्ब आएगी, अ पेन जो ऑब्जेक्ट है, फिर जिहड़ी हैल्पिंग वर्ब है वही आपां हैव यू इत्थे बनावांगे पॉजिटिव दे विच। सैकेंड दे विच की कह रहा है, यू हैव टू मूव अ हैवी टेबल, तुसीं ने हैवी टेबल है जिहड़ा उसनूं मूव करना है, हिलाउणा है ना, मतलब चक के किसी होर पासे करना होगा।
ਯੂ ਵਾਂਟ ਜੋ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਹੈਂਡ ਵਿਦ ਇਟ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹੱਥ ਲਵਾਵੇ ਨਾਲ। ਆਸਕ ਹਿਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਯੂ ਕੁਡਨਟ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਹੈਲਪ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵਰਬ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਿਵ ਹੈਲਪ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਯਾਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਯੂ ਕੁਡਨਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲਪ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਗਿਵ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਦ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਹੈਂਡ, ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਹੈਂਡ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਹੈਂਡ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹੱਥ ਲਵਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਯੂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀ ਅ ਹੈਂਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਕੁਡਨਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਡ ਯੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਸਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਹੇਪਸ ਕੇਟ ਨੋਜ਼ ਵੇਅਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼, ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਟ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਆਸਕ ਹਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੇਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਟ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵੇਅਰ ਸਾਰਾ ਇਜ਼, ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਡੂ ਯੂ, ਕਿ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਆ ਗਿਆ। ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕੇਟ ਨੋਜ਼, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਡੋਂਟ ਜਾਂ ਡਜ਼ਨਟ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਨੋਜ਼ ਫਸਟ ਆ ਗਈ ਨੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਅਰ ਸਾਰਾ ਇਜ਼, ਵੇਅਰ ਸਾਰਾ ਇਜ਼ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਟੈਗ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਟੈਗ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੋਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡੂ ਯੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਟੈਗ ਅੱਗੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਾ ਦੇਣੇ। ਚੌਥਾ ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਪੰਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਪੰਪ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰਹੇਪਸ ਹੈਲਨ ਹੈਜ਼ ਗੋਟ ਵਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਲਨ ਲਵੇ ਹੈਗਾ। ਆਸਕ ਹਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਨ ਯੂ ਹੈਵਨਟ ਗੋਟ ਅ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਪੰਪ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੈਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਯੂ ਹੈਵਨਟ, ਮਤਲਬ ਯੂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈਵੀ ਲੱਗੂਗਾ। ਯੂ ਹੈਵਨਟ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੈਵਨਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਗੋਟ, ਗੋਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਪੰਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਪੰਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਪੰਪ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਵਨਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਵ ਯੂ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਵਾਂ ਐਨ ਹੈਜ਼ ਅ ਕਾਰ ਐਂਡ ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਲਿਫਟ ਟੂ ਦ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲਿਫਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਨ ਲਵੇ ਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲਿਫਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਹੇਪਸ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਯੂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਐਨ ਯੂ ਕੁਡਨਟ ਟੇਕ ਮੀ ਟੂ ਦ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਕੁਡ ਯੂ, ਕਿ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗਣਾ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੱਡ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਲਪ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁੱਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਯੂ ਕੁਡਨਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨਾ, ਯੂ ਕੁਡਨਟ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੇਕ, ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਯੂ ਕੁਡਨਟ ਟੇਕ ਮੀ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਕਿੱਥੇ, ਟੂ ਦ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਟੂ ਦ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ, ਟੂ ਦ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਟੂ ਦ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਕੁਡਨਟ ਦਾ ਕੁੱਡ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਯੂ। ਅੱਗੇ ਯੂ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर योर ਕੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਬੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਹੇਪਸ ਰੋਬਰਟ ਹੈਜ਼ ਸੀਨ them, ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਬਰਟ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਰੋਬਰਟ, ਆਪਾਂ ਰੋਬਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਬਰਟ ਯੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਵਨਟ, ਯੂ ਹੈਵਨਟ, ਹੈਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੋਬਰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵ, ਯੂ ਹੈਵਨਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨ, ਹੈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੀਨ, ਯੂ ਹੈਵਨਟ ਸੀਨ। ਕੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਈ ਕੀਜ਼, ਯੋਰ ਕੀਜ਼, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਬੀਆਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਮਾਈ ਕੀਜ਼, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਹੈਵ ਯੂ, ਹੈਵਨਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਵ ਯੂ ਇਸ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਰੂਲਸ ਨੇ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।